Assalamu alaikum. Welcome to the 12th lecture of logistics management. In the last lecture we came to the product. Actually that was a very interesting area to explore because I told you somewhere in the start that to know your product is the most important thing for a logistician. Why? Because just not to understand the product, that what it is, but to understand how it is perceived by the others, how it is to be handled by the others, what type of the product it is, how it will be demanded and all that. Then from there we had the discussion in one or two lectures ago, and in the last lecture we came to the actual physical characteristics of the product. We discussed that the product in product characteristics, that how does weight to bulk ratio, for example, how does value to weight ratio, how does the substitutability of the product, how does the risk factors associated with you can say transportation and storage of a product affects the total cost of the logistics or the transport cost and the inventory cost. So all of these factors have an effect. You know, if you are a logistics manager of some company, like for example which is transporting computers or laptops, that would be different, because that laptop would be a specific size laptop. When I'm talking about like weight to, in the perspective of weight to bulk ratio. Now, or for example car batteries, like they are very heavy car batteries, or for example cement industry, they package the product into smaller chunks, into smaller segments, and then they sell it. Now they are, for example, if you look at like a bag of cement and almost of the similar size, a very different example, a bag of Pampers for the kids. Now if you have a large size of a bag of Pampers, it is almost of the same size as a bag of you can say cement. लेकिन जब उसको स्टोर करने जाएंगे तो दोनों का वेट टू बल्क रेशियो डिफरेंट है, दोनों कॉस्ट में डिफरेंटली ऐड करेंगे जाके, बिकॉज जो आपका सीमेंट है वो ट्रक की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेगा, उसकी वेट कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेगा, जबकि जो आपका वो है पैम्पर्स का बैग है बड़े वाला, दैट वुड एक्चुअली कॉस्ट मोर इन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसका वेट टू बल्क रेशियो में उसका जो है वो बल्क ज़्यादा है, उसका वेट कम है, उसको स्टोर करने के लिए और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए आपको, क्योंकि वो वेट इतना गेन नहीं कर रहा, जबकि सीमेंट शुरू में ही वेट के पर्सपेक्टिव में वो फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेगा उसकी, उस पर कॉस्ट कम आएगी स्टोर करने में। इसी तरह वैल्यू वेट रेशियो का इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आयरन ओर है और आपका गोल्ड है, दोनों अगर सेम वेट के भी हों तो जो आयरन ओर है उसकी प्राइस कहीं कम होगी एज कम्पेयर टू द गोल्ड। सो द पॉइंट इज़ कि फिर वैल्यू वेट रेशियो के हिसाब से दोनों की सेफ्टी, दोनों की सिक्योरिटी, दोनों की आप कह सकते हैं स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, दोनों को आप सेम तरीके से स्टोर भी नहीं कर सकते। आयरन तो आप ओपनली शायद बाहर ओपन एरिया जगह पे रख दो, लेकिन आपने गोल्ड को स्टोर ऐसे करना है कि थेफ्ट के प्रेशर से बचने के लिए उसको कोई एनवायरनमेंट किसी तरह से डैमेज न कर दे, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल। इसी तरह सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इफेक्ट करती है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इफेक्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन को, क्योंकि इफ़ द प्रोडक्ट इज़ वेरी सब्स्टिट्यूटेबल, दैट वुड मीन कि अगर कस्टमर एक चीज़ लेने गया और वो उसको शेल्फ पे नहीं मिली तो उसने उस जगह सब्स्टिट्यूट उठा लिया, अगर उसने कस्टमर ने उसका सब्स्टिट्यूट उठा लिया, दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन दैट द प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूटेबल एंड द सप्लाई चेन हैज़ टू बी वेरी एफिशिएंट टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज देयर एट the given moment. Then the risk factor associated with the product, greater the risk factor, greater the cost of storage and transportation, because more security and more concern is required. Risk factor किसी तरह के भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट के डैमेज होने के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल चोरी वगैरह, थेफ्ट वगैरह रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, प्रोडक्ट के इरोजन कोरोजन के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, प्रोडक्ट किसी और चीज़ को डैमेज कर सकती है उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, प्रोडक्ट कैन गेट एक्सपायर्ड उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं उतनी ज़्यादा कॉस्ट आपकी इनकर हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की। कुछ केमिकल्स हैं जो दूसरे केमिकल्स को आपको खास एनवायरनमेंट आपको स्टोर करने पड़ेंगे, वरना दूसरी चीज़ों को डैमेज कर देंगे वो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो खुद डैमेज हो जाएंगी, आपके फिश और आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह एक्सपायर होने का खतरा होता है। सो द पॉइंट इज द रिस्क फैक्टर अगेन आपकी कॉस्ट में ऐड अप करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की और स्टोरेज की। देन वी डिस्कस द प्रोडक्ट पैकेजिंग, कि प्रोडक्ट पैकेजिंग क्यों करते हैं, व्हाट टाइप्स, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जो खास तौर पे लॉजिस्टिशियन के फोकस में चीज़ आ रही थी, दैट वाज बेसिकली टू डिफाइन इट्स साइज, उसकी डायमेंशंस डिफाइन हो जाती हैं उससे। आप प्रोडक्ट को स्मॉलर चंक्स में ब्रेकअप करके डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसा सीमेंट को किया जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल द सीमेंट एज अ होल एज कम्पेयर टू हैंडलिंग द बैग ऑफ सीमेंट।
तो उसको मैनेजेबल उसमें पैकेज किया जाता है. दैट इज मोर डायरेक्टली रिलेटेड टू जो प्रोडक्ट की बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्म जो बन जाती है पैकेजिंग के बाद, दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द लॉजिस्टिक्स पोर्शन. Then we came to product pricing. Basically, product pricing was directly associated with the concept of product price discrimination. I guess you have heard of it. I explained a little bit. Price discrimination is that when you charge different prices to different customers for the same product. Now, why do you do that? From economic perspective, that is to earn revenue also on one end, and then delivering the product to one customer or to another, the cost might differ, and in order to account for those costs, you need to consider different pricing. Like for example, if a product is located in a far-flung region, then delivery of that product to that region would cost you more as compared to delivery of that product to nearby location. So that means that the price of that product should reflect the cost of transportation as well, the cost of storage as well. So price discrimination on the other hand can be done to gain more revenue. In certain cases, for example, a product with, we basically discuss it in the perspective of elasticity of demand. The product whose demand is more inelastic, you can charge higher prices for that. Even if in two different markets, a product's price is the demand is inelastic comparatively to to its demand in the adjacent market, then you would charge higher prices over there. Then there are certain conditions for price discrimination also, that there is you can segregate the markets from one another. You can easily do that. Then the price you discriminate, basically the amount of price discrimination should not be it should not be possible for people to buy from one market and resell in another market to gain their own profit. So their cost should include the transportation, and that should be the discriminated price, and that would be enough to discriminate the price. So in this product pricing, basically from the perspective of logistics management, that was an economic perspective, put it on the side. But it is somehow related to product pricing, do remember that. Now we were discussing basically free on board concept, free on board origin and free on board destination. We basically and then we discussed zone pricing, and the remaining product pricing areas were still to be discussed. In free on board concept, I specifically mentioned that there were two broad types: free on board origin and free on board destination. In free on board origin, it is the customer who is the responsible for transportation or delivery of the product, and the factory price is the price that is paid. But when it is free on board destination, that is that when these are the broad definitions that I'm giving you right now. In destination, it is the supplier, the seller, who actually ensures the delivery of that product to the customer. So apart from this free on board, we discussed the zone pricing, in which a firm might divide, if it is serving a larger segment of a market, it might divide that larger segment into different zones and might charge different prices based on these zones, because the further away the zone is, the higher the transportation and storage cost the firm would have to incur. So that is why higher price would be charged in the most farthest region. That is basically zone pricing. So this was basically the summary of the last lecture that we had. Now moving on, these are the areas that I have covered: geographic pricing methods, FOB, free on board pricing, factory price, delivery price, and then zone pricing. Now we turn to single and uniform pricing. In single and uniform pricing is the most simplest of the mechanism, because you do not discriminate and you charge a uniform price to all the customers. Now that is the easiest way to do it, administratively the easiest way to handle, but it is, you can say, it might not be very efficient way. The reason might be that if you charge a single price, let's assume that you are charging the highest possible price for a product. Of course, you are not going to charge the lowest possible price, or maybe you are going to charge some median price. Based on that you are assuming that if it is a normal distribution, the spread of the customers, that would mean that it would balance out. But if assuming that you are going to charge a price which is higher based on the farthest customer having the maximum transportation cost, and you are going to charge the same price to the customer who is nearby, that type of discrimination policy can also
also be challenged in the court, and that would be a different kind of a discrimination. If you're even if you're charging the same price, and then you basically the first few customers, if we look at it from the perspective of zones, I hope you remember the graph that or the picture that we saw last time. If we are looking at from the perspective of zones, I don't have it, I just checked it out. Now, if you are looking at it from the perspective of zones, then the customer at the nearest point would be bearing most of the burden, because there would be no delivery charges over here for him. You see? So extra transportation cost, he would be bearing the burden for that person as well, and that person, the other person at the end of the zone, would be bearing the minimum amount of the extra burden, because all the extra price that is being charged is basically because of him. So he would be actually paying the amount that is the cost of delivery, while the first customer that is most near to the location would be bearing the maximum amount of that burden. So this is some sort of ethically, you can say, questionable also. Now, moving on, then there is concept of freight equalization. Freight equalization is a concept when there is a high level of competition in the market, when there are multiple firms competing with each other over the market share. In economics, we usually give the example of perfect competition or monopolistic competition to simplify things, but since that is not your domain, I would give you example of freight equalization in the concept of same high competition in a market between like few firms that are competing against with each other against for a certain market share in the market. Now, if these firms are located in different locations and they charge prices basically based on their own perspective, then each price would be different. Delivered price to, for example, one location A would be different for all these few firms, and the customer would buy the product which would have the lowest possible price. You see, if the products are similar, again, that is why we need to assume perfect competition or something. Now, assuming for a largely similar product which are substitutable for each other, that would mean what firms would do is that firm A, who is at a farther distance, would charge the price which is almost equal to the firm which is closest to the customers, because their transportation cost is low. My transportation cost is high. Firm B is located in the market where it serves. I am located a little farther away from the city. Now we are serving that market. My transportation cost is higher. Their transportation cost is lower. They would immediately serve the customer at whatever price that they want to serve. If I include the freight charges, transportation charges in that price, so that would mean that my price would be higher and the customers would move to their product. So what I do is that I charge the price equal to their transportation charges, the other company, firm B's transportation charges. This terminology, this phenomena is mentioned as freight equalization. What I'm doing is that I'm charging the same transportation charges as he is, so that our market price is necessarily the same. I cannot, of course, it would be very difficult for me to charge below their price, but at least I can charge equal to their price, so that competition remains over there and customers, I do not lose any market share to my competitor. That is the concept of freight equalization. Then another interesting aspect is basing point pricing. Basing point pricing is also similar to freight equalization. What I do is that I, assuming that there are number of markets that are being served from certain location, what I would do is, in order to my price to be same, I do not consider my distance from the market. From that, I consider my competitors' distance from the market. I make them as the base point from where I am delivering the product. I assume that my point of delivery is not my warehouse, my point of delivery is their warehouse. So we create a base, and from there we charge the price. We calculate the transportation cost based on their warehouse. That would mean that I am going to charge price equal to my competitor, and that is how I would ensure that prices are same in the market and I am still competitive.
Then in terms of product pricing, before we were discussing geographic pricing methods, for free on board zone pricing, single or uniform pricing, freight equalization, basic point pricing. And now let us discuss another phenomena, which is incentive pricing. Incentive pricings are basically to give a customer some sort of an incentive to purchase at a different price. So basically one of the incentive pricing mechanism is used as quantity discounts. The greater the quantity that you purchase, the greater would be the discount. Now why that is possible? Because now look at the graph over here. On the x-axis there is quantity purchased per case. On the y-axis there are logistics costs per case. Just assume that there is a firm which is producing different cases and these case means something to store in, और हर केस की जो है वो एक खास क्वांटिटी की खास कॉस्ट इनकर होती है. 100 एक ट्रक लोड जो है दैट इज $100, 100 केसेस. नाउ फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स अगर एक 100 से लेके 200 एक ट्रक लोड बन जाता है, उससे ऑनवर्ड जो है वो रेल रोड या रेल कार की तरफ चला जाता है, जो ये आपके स्टेप्स वाला लाइन जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. 100 से नीचे 100 से नीचे वुड मीन लेस देन अ ट्रक लोड, 100 से ऊपर मीन्स अ ट्रक लोड, 100 से 200 तक ट्रक लोड में चला जाता है. अगर 200 से ऊपर होगा दैट वुड मीन कि हम रेल कार के थ्रू भिजवाएंगे उसको. ये दैट इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस होती जाती है. लेस देन अ ट्रक लोड इंक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. उससे नीचे है ट्रक लोड, 100 से आगे इमीडिएट जंप है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. 100 से 200 तक ट्रक लोड पे आप भिजवाते हैं, ट्रक लोड से नीचे आप भिजवाते हैं तो आपकी रेल कार आ जाती है. इसका साथ इसके एक लाइन आपको नजर आ रही है पर केस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. दैट वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पर केस जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है दैट इज कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट बट दैट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. दैट्स व्हाई इट इज अ 45 डिग्री लाइन. Now then there is a downward sloping and negative sloping curve which is per case order processing and handling cost. वो हम ये assume कर रहे हैं कि that is the cost that हम जैसे जैसे हम quantity increase करते जाते हैं वो divide होते होते उसके ऊपर reduce होती जाती है, तो average cost की तरह basically reduce हो जाती है ये. Then उसके साथ एक red line नज़र आ रही है जो इन सारी cost का sum है. This is total per case cost, transport plus inventory plus order processing and plus handling cost. Now इन सब का एड अप करके वो डिफरेंट कॉस्ट बन जाती हैं. अब हम प्राइस कौन सी चार्ज करें, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी प्राइसेस चार्ज की जा सकती हैं. अगर फॉर एग्जांपल हम ऊपर रेड वाली लाइन को देखते हैं तो वी कैन सी कि जो प्राइस चार्ज की जाएगी अगर 100 से कम केसेस होंगे तो हमें जो ऊपर वाला पहला कर्व है उसके ऊपर प्राइसेस चार्ज करनी पड़ेंगी, उससे प्राइसेस चार्ज करनी पड़ेंगी. अगर उससे हम आगे चलते हैं 100 से लेके 200 तक वी वुड चार्ज अ प्राइस ऑफ अराउंड, जो आपका ये वाली लाइन जो आपका स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रेड लाइन के आगे 100 से ऑनवर्ड्स वहाँ से रिड्यूस हो जाता और वहाँ से लेके 200 तक हम ये वाली प्राइस चार्ज करेंगे. उसके बाद 200 ऑनवर्ड्स आप जो आपके अगेन जो सेकंड ड्रॉप है, इसका सेकंड सेगमेंट है आपका सेकंड और थर्ड सेगमेंट के दरमियान जो ड्रॉप है वहाँ से हम प्राइस चार्ज करेंगे. इफ़ यू लुक एट ऑन योर स्क्रीन एट द माउस नाउ 100 से नीचे ऑफ कोर्स दिस वुड बी द एरिया जहाँ पे हम प्राइस चार्ज करेंगे बिकॉज आपकी कॉस्ट जो है वो लेस देन अ ट्रक लोड आपको ज़्यादा पड़ती है. 100 से जब नीचे आते हैं आप 100 ऑनवर्ड जो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस से सप्लाई करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाली टोटल कॉस्ट आपकी बनती है. 100 एंड अबव आपने ये वाली प्राइस चार्ज करनी है. इसका मतलब है 100 से लेके 200 तक आप ये प्राइस चार्ज करेंगे. उसके बाद आ जाए यहाँ तक, ये 200 तक है, 200 और इससे 199 तक है. इनफैक्ट 200 और इससे ऊपर आपकी ये कॉस्ट पड़ती है. इसका मतलब है उससे ऑनवर्ड्स आप ये वाली प्राइस चार्ज करेंगे. इसका मतलब है दिस आर बेसिकली प्राइस डिस्काउंट्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और द मेन जस्टिफिकेशन जो प्राइस डिस्काउंट, क्योंकि ये जो शिफ्ट्स हैं इसके अंदर जो हमें नज़र आ रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स हैं, दीज स्टेप्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड टू ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी स्टेप्स की शक्ल में बनी हुई है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट स्टेप्स की शक्ल में बनने का मकसद ये है कि ये आपकी क्वांटिटी और जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है उसके ऊपर बेस कर जाती है. यानी कि 100 से नीचे आपको शिपमेंट कॉस्ट एक्सपेंसिव पड़ती है. क्यों? क्योंकि आप स्मॉलर बैचेस में भिजवा रहे हैं.
100 से ऊपर, या फॉर इवन कि अगर आप एक ट्रक के अंदर भिजवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 80 आइटम्स आपने भिजवाने हैं, 80 केसेस आपने भिजवाने, जबकि ट्रक की कैपेसिटी 100 केसेस है, तो लेकिन जब आप ट्रक की कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 केसेस के हिसाब से ही करेंगे। वो 100 केसेस की कॉस्ट जो है वो 80 केसेस के ऊपर पड़ी है, दैट इज़ वाई कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अगर 100 केसेस की कॉस्ट 100 केसेस के ऊपर पड़ती है तो वो कॉस्ट कम पड़ती है। पर यूनिट कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि 80 के ऊपर अगर 100 केसेस वाली कैपेसिटी की कॉस्ट पड़ती है तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। अगर 100 के ऊपर 100 केसेस पर कैपेसिटी वाली कॉस्ट पड़ेगी पर यूनिट कॉस्ट, तो वो कम पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो 80 में थी। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको ये वाला जो पॉइंट है ट्रक लोड वाला, यहाँ से जब फुल ट्रक की कैपेसिटी यूज़ कर लेते हैं से लेके 200 तक आपकी प्राइस सेम रहती है, कॉस्ट आपकी सेम पड़ती है, जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट वो जंप अचानक शो करता है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद इससे ऑनवर्ड्स आप रेल रोड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। 200 से ज़्यादा का अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आप रेल कार लोड लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन्ड है स्पेसिफिकली, ये वाला एरिया। सो दिस इज़ द पॉइंट कि जहाँ से आप ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस इज कि जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि इंसेंटिव प्राइसिंग है, ये बेसिकली आप प्राइस डिस्काउंट्स कस्टमर को ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी परचेज्ड के बेस के ऊपर दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक्स, जिसमें आप क्वांटिटी बेस्ड लोगों को डिस्काउंट देते हैं। द ग्रेटर क्वांटिटी दे बाय द लेसर प्राइस दैट यू वुड चार्ज, आप उसको डिस्काउंट देंगे। लेकिन ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है खाली सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की लॉजिक रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है दोज आर द मेन रीजन वाई सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वुड टेक प्लेस, या वाई प्राइस डिस्काउंट दे के आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ टूल जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है या रेवेन्यू अर्न करने के लिए किया जाता है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से जो है वो ये आपको डिफरेंट प्राइसेस आप चार्ज कर सकते हैं। नाउ वी ओवर विद गेटिंग ओवर विद द प्रोडक्ट, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन। अगर आप लोगों को ट्रायंगल याद हो, वो डायग्राम जिसमें ट्रांसपोर्ट, लोकेशन वगैरह सारे शामिल थे, दरमियान में कस्टमर सर्विसेज था, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट एंड लोकेशन। तो उसके अंदर जो हमने अभी ट्रायंगल के अंदर कस्टमर के साथ द प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया, उसके साथ ही नीचे जो लोकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो फर्म की लोकेशन की बात आ जाती है। नाउ देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, एक्सपीरियंस टीचर्स दैट मैन आर सो मच गवर्न्ड बाय व्हाट they are accustomed to see and practice that the simplest and most obvious improvements in the most ordinary occupations are adopted with hesitation, reluctance and by slow graduations। यानी कि हम लोग अपने एक ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर इतनी आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, जब मतलब जब हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं तो इतने उसके अंदर कस्टम जो हो जाते हैं, उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किसी नई जगह पे शिफ्ट करें या हम कोई चेंज लेके आना चाहें और हम उसके अंदर उस फिक्स पैटर्न को चेंज करने को राज़ी नहीं होते। नाउ अगर आपको लोकेशन स्ट्रैटेजी वाला ट्रायंगल याद हो तो फैसिलिटी लोकेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन द लोकेशन स्ट्रैटेजी। अगर ट्रायंगल के नीचे वाले हिस्से को देखें, द रेड पॉइंट को देखें, तो दोज आर लोकेशन डिसीजंस एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। नाउ देयर आर मेनी क्वेश्चंस अबाउट लोकेशंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपने लोकेट क्या करना है, आप किस चीज़ की लोकेशन को डिबेट कर रहे हैं। क्या आपने प्लांट को लोकेट करने की बात कर रहे हैं, क्या आप वेंडर्स की लोकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आप पोर्ट्स की लोकेशन की बात कर रहे हैं, किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। ये सारे सोर्सिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से चीज़ें आती हैं। फिर आ जाते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स, क्या आप वेयर हाउसेस की लोकेशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आइदर आप सोर्सिंग पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं या आप इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं या आप सिंक पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं। क्या आपने प्रोडक्ट कहाँ से बना के डिलीवर करनी है, या आपने वेयर हाउस दरमियान में किस जगह पे स्टोर करनी है, या आपने कौन से कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। ये आपकी 3 ब्रॉड लोकेशंस हैं। इसके अंदर सोर्सिंग पॉइंट्स में क्या क्या आ जाता है, प्लांट्स, वेंडर्स एंड पोर्ट्स, और इंटरमीडिएट पॉइंट्स के अंदर क्या आ जाता है, वेयर हाउसेज, टर्मिनल्स, पब्लिक फैसिलिटीज, फायर पुलिस एंड एम्बुलेंस स्टेशन एंड सर्विस सेंटर्स। ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है, क्या इनको लोकेट करने की बात कर रहे हैं हम लोग। देन देयर आर सिंक पॉइंट्स, रिटेल आउटलेट्स, कस्टमर्स / यूजर्स, क्या हम उनको ट्रेस करने की बात करें कि हम किस लोकेशन पे ये चीज़ प्रोवाइड करें। सो जो लोकेशन का क्वेश्चन है दैट हमने किस चीज़ को लोकेट करना है फर्म के लिए, लोकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
जो वो शुरू में डिसाइड करेगी और उसके साथ इट वुड हैव टू स्टिक टू इट। लोकेशन के बारे में आप लोगों ने अपने एक कोर कोर्स में आई गेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल से लोकेशन समझाई जाती है। व्हाट आई वुड डू इज कि आई वुड गिव यू अ ब्रॉडर ओवरव्यू, और मैं कुछ नई टेक्निक्स आपको सिखाता हूँ, रादर देन आपको वही जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं उनको रिपीट करने के बजाय आई वुड गो थ्रू सम न्यू टेक्निक्स, सम डिफरेंट वंस। कुछ उसमें से हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर जगह भी दुनिया में रिपीट होती है, उसके अलावा 2-3 मैं आपको उसे डिफरेंट हट के करा दूंगा, सो दैट वी लर्न, द बेसिक पर्पज इज लर्निंग। नाउ द पॉइंट इज के हाउ मेनी फैसिलिटीज शुड बी देयर, इन सब के बारे में, चाहे वेयर हाउसेज की बात कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप मार्केट्स की इस वक्त बात कर रहे हैं, हाउ मेनी फैसिलिटीज शुड बी देयर, वेयर शुड दे बी लोकेटेड, व्हाट साइज शुड दे बी। नाउ ये वो की क्वेश्चंस हैं जो हमने लोकेशन के बारे में आंसर करने हैं। फैसिलिटी की लोकेशन होनी किधर चाहिए आपको, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फैसिलिटी, अभी तो इफ यू स्टार्ट डिस्कसिंग विद मी राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस टू यू कि जी मैंने, अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं ये भी नहीं बता सकता कि मैंने बनाना क्या है। तो जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने बनाना क्या है, तो उसके बाद आप इस स्टेज पे आ जाते हैं कहाँ बनाना है, वेयर एम आई टू बी लोकेटेड, क्योंकि फर्म की लोकेशन वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो फर्म के फ्यूचर की डेस्टिनी को डिसाइड कर रही होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक फर्म मिसलोकेट हो जाती है, यू मस्ट हैव सीन बिजनेसेस फ्लॉप इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज दैट दे वर लोकेटेड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। आपका बिजनेस एक ऐसी जगह पे लोकेट होना चाहिए उस गिवन मोमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जाके अभी खोल दें किसी दूर दराज के गांव में, इंटीरियर पंजाब या इंटीरियर सिंध या इंटीरियर बलूचिस्तान के अंदर, दूर दराज के किसी गांव में, तो इज इट राइटली लोकेटेड? हु वुड गो ओवर देयर? नोबडी, राइट? तो आपने अपनी किसी चीज को लोकेट करने से पहले एक आइडियल सिनेरियो बिल्ड करना होता है। देयर मस्ट बी सम लॉजिकल रीजनिंग जिसके ऊपर आप उसको बिल्ड करते हैं, अदरवाइज हैप्पैज़र्ड डिसीजन तो कोई भी ले सकता है। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। नाउ मूविंग ऑन, उनके नंबर कितना होना चाहिए कि आप 10 वेयर हाउसेज बनाएं, आप 20 वेयर हाउसेज बनाएं, आप एक वेयर हाउस रखें, आप सेंट्रल आप 3 वेयर हाउसेज बना लें डिफरेंट स्कैटर्ड लोकेशंस में, कितने बनाएं? फिर व्हाट साइज दे शुड बी, कि आपने कितना वॉल्यूम उधर से प्रोवाइड करना है। अगर एक वेयर हाउस आप बनाते हैं उससे कुछ सोर्सिंग, आप उसको कुछ जगहों का सोर्सिंग पॉइंट बनाते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल दैट वेयर हाउस इज अ सोर्सिंग पॉइंट फॉर सम डेस्टिनेशन दैट आर टू बी फेड, दैट वुड मीन कि आपने ये डिफाइन करना है कि उसका क्या साइज हो, कितना वॉल्यूम उसने फीड करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस वो मेन क्वेश्चंस हैं जो लोकेशन से एसोसिएटेड होते हैं। इसमें से हमारा फोकस is thing where to locate, where should they be located, because how many facilities should there be, that is the basic question जो start में आपकी strategy के ऊपर आ जाता है। जब आपने number of facilities आपने decide कर ली तो फिर logistics management आ जाती है बीच में कि कितनी आपने, क्योंकि वो जो market size के ऊपर dependent है जो आपने how many facilities, उसके बाद where should they be located, that is the responsibility of logistics as well as marketing. Then what size they should be, again logistics and marketing. Why location is important? It gives structures to the network. It significantly affects inventory and transportation costs. Impacts on the level of customer service to be achieved. ये इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। यानी कि एक तो वो नेटवर्क को ऑर्गेनाइज कर देता है, जो लोकेशन आपकी डिसीजन होती है, लोकेशन का आप जो प्लान्स करते हैं। फिर जो आपकी इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आपकी लोकेशन से बड़ा मैटर करते हैं। अगर आप कस्टमर से बहुत ज़्यादा दूर बैठे हुए तो आपकी इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाती हैं। अगर आप कस्टमर के इफ़ यू आर वेरी नियर बाय, दैट वुड मीन द कॉस्ट वुड बी लोअर। देन इम्पैक्ट्स ऑन द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस टू बी अचीव्ड, कि अगेन द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो कस्टमर से आपकी कमिटमेंट है, जो उसकी सर्विस की कमिटमेंट है, जो उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कमिटमेंट है, दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, एंड दैट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द लोकेशन, कि आप उसके कितना करीब हैं, कितनी जल्दी आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। सो बेसिकली location is one of the very important aspects of servicing or meeting the needs of the customer.
अगर आप if your location is very far away, your inventory and transportation costs would go up, would go shooting up, and if you are nearby to the customers, obviously your inventory and transportation costs would go down. But secondly, it is also associated with the location of the facility. खाली warehouse की location matter नहीं करती. It also depends on the location of the whole production facility. There are different methodologies, solutions जिसके थ्रू इसको डिस्कस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर सिंगल वेयर हाउस की लोकेशन की बात कर सकते हैं, देयर आर ग्राफिकल मेथड्स, देयर आर ग्रिड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोच. मैं जो बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि देयर इज़ वन अप्रोच जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोच. तो ये हमेशा डिस्कस की जाती है, ऑलवेज इट इज़ वन ऑफ डायनामिक अप्रोच जिसको डिस्कस करते हैं. देन फिर मल्टीपल लोकेशंस के लिए आप सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ह्यूरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं जो डेफिनेटली आप लोगों को ऑपरेशंस मैनेजमेंट में ही पढ़ाए जाएंगे या पढ़ाए गए होंगे अब तक. सो व्हाई नॉट फोकस ऑन सम डिफरेंट टेक्निक्स. इसमें से कुछ लोकेशन के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल फैसिलिटी लोकेशन के लिए कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस भी डाल दिए. आई वुड आल्सो डिस्कस एक कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस डाला और एक वो डाला जिसमें फैसिलिटी लोकेशन के लिए रैंकिंग, रैंक ऑर्डर समथिंग, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली भूल गया उसका. बट द पॉइंट इज़ कि मैंने 2-3 नई टेक्निक्स बीच में डाल दी हैं विच वुड नॉट बी डिस्कस, जो आपके ऑपरेशंस के सब्जेक्ट में नहीं डिस्कस होंगे. सो स्टिल मूविंग ऑन, देर आर मल्टीपल मेथड जिसके थ्रू आप लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने किस जगह पे आइदर वेयर हाउस लोकेट करना है या हमने फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन फैसिलिटी को लोकेट करना है. जो डिसीजंस है लोकेशन की, इट इज़ ड्रिवन बाय इकोनॉमिक्स बेसिकली. Relevant costs such as transportation, inventory carrying costs, labor and taxes are traded off against each other to find the best location or to find the good location. The point is कि सारा कुछ everything revolves around economics. मैं अपनी क्लासेस में भी हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि आप दुनिया की कोई एक चीज़ पॉइंट आउट करके मुझे दिखा दें जिसकी एसोसिएशन इकोनॉमिक्स के साथ नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक, सबसे पहले एग्जांपल ये दी जाती है कि माँ बाप के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज़ डिफरेंट, उसको ज़रा साइड पे करें. मैं लेकिन पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, वॉर्स, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मीडिया, एवरीथिंग, हर एक एसोसिएशन इकोनॉमिक्स के साथ. इकोनॉमिक्स इज़ द कोर, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, समथिंग लाइक दैट. सो जो लोकेशन की डिसीजंस हैं, those are directly associated, driven by economics. Now relevant costs such as transportation, inventory carrying costs और labor costs and taxes, उन सबको आपस में comparison किया जाता है. ट्रेड ऑफ एनालिसिस हम पहले पढ़ चुके हैं टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कि हम टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो बेसिकली आप ये इन सारी कॉस्ट को आपस में कंपेयर करते हैं और आप वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होती हैं. तो दैट वुड बी द बेस्ट लोकेशन. ऑब्वियसली अंडर सर्टन कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक सीमेंट प्लांट हैं या आप फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी वो चिमनीज देखी हैं जो भट्ठे होते हैं जिसमें बेसिकली ईंटें बन रही होती हैं, उनकी खास लोकेशन होती है. उनको आप शहर से दूर कभी भी नहीं बनाते, लेकिन आप शहर के अंदर भी उनको नहीं बना सकते, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसलिए शहर के करीब तरीन वो बने हुए होते हैं. पॉइंट ये कि वो वेट गेनिंग प्रोडक्शन, खैर वो डिबेट अलग है. द पॉइंट इज कि लिमिटेशंस हैं कुछ, उनको फिर कंसिडर करना पड़ता है लोकेशन को डिसाइड करते हुए. नो डाउट आपको स्किल्ड लेबर चाहिए. फॉर एग्जांपल एक स्किल्ड लेबर एक ऐसे रीजन में मौजूद नहीं है जो रूरल एरिया, तो आपको ऑब्वियसली फिर ऐसे रीजन में लोकेट करना पड़ेगा जहाँ खुशी खुशी आपका स्किल्ड लेबर भी आपके पास एम्प्लॉय होने को तैयार हो जाए. सो दैट वुड मीन कि इन सर्टन कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं. फिर देर आर टू एंड्स बेसिकली. देर आर रिटेल एंड, डिसीजंस आर ड्रिवन बाय रेवेन्यू. ट्रैफिक फ्लो एंड रिजल्टिंग रेवेन्यू और प्राइमरी लोकेशन फैक्टर्स. कॉस्ट इज कंसिडर्ड आफ्टर रेवेन्यू, यानी कि आप एक एंड पे इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड वेयरहाउस का लेके जा रहे हैं, ब्रॉडली आप सिर्फ कॉस्ट पर्सपेक्टिव को चेक कर रहे हैं. दूसरा आप रिटेल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. डिसीजन आर ड्रिवन बाय रेवेन्यू नॉट द कॉस्ट, कि कहाँ पे किस तरीके से आप ज़्यादा रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हैं. दैट इज़ द प्राइमरी फोकस. अगर रेवेन्यू आप ज़्यादा अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट से ऊपर चला जाएगा, एंड दैट इज़ द एम. तो कॉस्ट को उसके बाद सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं. द थर्ड इज सर्विस, यानी कि आप सर्विस फैक्टर्स देख रहे होते हैं. सर्विस फैक्टर्स इस सेंस में कि आप कस्टमर को कितनी जल्दी सर्व करते हैं, वो उस सेंस में रिस्पांस टाइम, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड की डायमेंशन फॉर लोकेटिंग द सर्विस इंडस्ट्री. सो बेसिकली हमने 3 पर्सपेक्टिव देख लिए.
है सारे इकोनॉमिक्स एसोसिएटेड, हमने 3 पर्सपेक्टिव देख लिए, कॉस्ट एसोसिएटेड पर्सपेक्टिव देख लिया, यानी कि आप डिफरेंट कॉस्ट को आपस में कंपेयर करते हैं और कहते हैं जी यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट इनकर होती है, वहाँ पे चले जाते हैं, मिनिमम कॉस्ट बेसिकली इन द गिवन सर्कमस्टांसेस जो कि कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर। फिर आप रेवेन्यू पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, आप रेवेन्यू को मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप कस्टमर के करीब तरीन होने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो आपका प्राइमरी फैक्टर होता है, इसमें लोकेशन आप देख रहे होते हैं। फिर आपका सर्विस फैक्टर ड्रिवन आप कह सकते हैं, आपकी लोकेशन डिसीजंस होती हैं, जिसमें आप कस्टमर को जिस टाइप एक्सेस कर सकते हैं, उसको टाइम जितनी स्पीड से सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपका गिविंग कस्टमर सर्विसेज योर प्राइम ऑब्जेक्टिव, दैट वुड मीन कि वो आपका एक प्राइम फोकस होगा लोकेशन डिसाइड करते हुए। सो ब्रॉडली लोकेशन एनालिसिस की ये 3 ही कैटेगरीज, 3 ही ग्राउंड्स के ऊपर आप लोकेशन डिसाइड कर रहे होते हैं। फिर Here are some location theories, जिसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ हम नहीं डिस्कस करेंगे। Broadly, early economic analysis, bid rent curves, classification of industries, Hoover's tapered transport rates, agglomeration economies, then there are mathematical, ये economic analysis वाली ऊपर approaches थी, फिर उसके बाद mathematical approaches आ गई, light analysis जिसमें chart, compass, ruler technique, spreadsheet, checklist, continuous location methods आ जाते हैं, जिसमें gravity model भी आ जाता है आपका, mathematical programming आ जाती है, optimization हो जाती है, linear programming हो जाती है, ये सारी techniques use होती हैं। तो इसमें से कुछ जो है वो एक्चुअली फिजिकली ऑन ग्राउंड भी प्रैक्टिस की जाती हैं और कुछ जो है खाली थ्योरेटिकली ही एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ब्रॉडली हम लोग इनमें से अक्सर को डिस्कस करते हुए कुछ ना कुछ टेक्निक्स को डिफाइन कर लेते हैं जो लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती हैं। नाउ द फर्स्ट फ्यू इकोनॉमिक एनालिसिस बेस्ड पर्सपेक्टिव्स आर, यू वुड सी दैट they were basically given by economists, but the point is that some of them might represent who gave those ideas, some of them might not. The first one that we would discuss is bid rent curve. It was a very old technique, a very interesting one yet, and somehow आपको ये लगेगा कि इसमें से काफी सारी चीजें by the way पुरानी हो चुकी हैं, but that does not mean कि totally wipe out हो गई हैं। अगर बिड रेंट टेक्निक, बिड रेंट कर्व को भी हम देखते हैं, तो मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ जी ऐसे अभी भी होता है, इन सर्टेन केसेस ऐसे होता है, नॉट परफेक्टली, क्योंकि जिस तरह थ्योरी डिस्कस करती है ना चीज़ों को, थ्योरी कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रख के चंद आइडियाज़ को साइड पे रख के थ्योरीज उसके बारे में दे सकती है, वो अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ की थ्योरी नहीं दे सकती, राइट। तो देयर इज नो जेनेरिक थ्योरी दैट वुड फिट ऑल। तो इसी तरह अगर बिड रेंट की थ्योरी है, वो काफ़ी सारे इंडस्ट्री के या सेगमेंट्स को डिफाइन कर देती है, तो दूसरे सेगमेंट्स को डिफाइन करने के लिए दूसरी थ्योरीज है। इसका कॉन्सेप्ट ही अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो एक किला फॉर एग्जांपल एक बंद शहर है, तो बंद शहर में अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस की अगर हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो अगर हम 3 बिजनेसेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, डेयरीज, वेजिटेबल एंड फ्रूट फार्म्स, व्हीट एंड कॉर्न, और 7 डिस्टेंस है, यानी कि 0 पे इस वक्त मार्केट है और उससे ऑनवर्ड जितना एक्स एक्सिस से आगे चलते जाते हैं, मार्केट से दूर जाते जाते हैं, आप शहर से बाहर जाते जा रहे हैं, राइट। और आपके वाई एक्सिस के ऊपर लैंड का रेंट है, यानी कि जिस जगह पे 0 है उस जगह पे हाईएस्ट लैंड का रेंट है, यानी कि जितना आप मार्केट के करीब है उतना ज़्यादा आपको हायर रेंट पे करना पड़ता है बिल्डिंग या लैंड का, और जितना आप मार्केट से दूर जाते जाते हैं उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंट, उतना कम से कम आप रेंट पे करते हैं क्योंकि आप दूर जाते जाते हैं। अगर आप एक शहर को देखें तो अक्सर शहर के गिरदो नवाह में एग्रीकल्चर लैंड्स बनते जाते हैं, और एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्जांपल भी आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते दूर होते जाते हैं, मतलब एक सबसे करीब है सिटी के पहले रिंग में, फिर एक सेकंड रिंग में आ जाता है, फिर एक थर्ड रीजन में आ जाता है, अगर हम उसको जोन्स में कंसिडर करते हैं, सर्कल रिंग्स बनाते हैं उसके शहर के, तो उसकी एसोसिएशन बिड रेंट की सिचुएशन अगर आप इस ये कर्व को उसको देखेंगे तो दैट रिप्रेजेंट्स द होल थिंग, दैट प्राइस माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू लैंड रेंट, यानी कि इन सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स कि जो जितना रेंट अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से वो लोकेट होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आप अगर फॉर एग्जांपल आप एक खास प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर हैं या सेलर हैं, तो अगर आप ज्यादा रेंट अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट वर्थ इट है, तो आप शहर के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट इतना रिटर्न नहीं ला के दे सकती कि आप हाई रेंट अफोर्ड करें, तो आप फिर शहर से बाहर बैठे हुए, ये दूर बैठे हुए, यानी कि इस एक्सट्रीम पे वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कम से कम रेंट अफोर्ड कर सकती हैं, और इस एक्सट्रीम पे मार्केट के करीब वो प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा रेंट अफोर्ड कर सकती हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन।
कि इट इज स्टिल समहाउ वैलिड। यानी कि इफ यू सी कि बिजनेसेस जब एक बिजनेस सेंटर बनता है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक इस्लामाबाद के एक सेक्टर को देख लें, या आप फॉर एग्जांपल किसी एक टाइप के बिजनेस को, अब आप इसको बिजनेस टाइप से ना एसोसिएट करें, आप इसके एसोसिएट कर लें कितनी कैपेसिटी के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है। यानी कि अगर जो शहर के महंगे इलाके हैं वहां पे वही बिजनेस कर रहा है जिसकी प्रोडक्ट उसको इतना रिटर्न ला के देती है, और जिसकी प्रोडक्ट इतना ज्यादा रिटर्न नहीं ला के देती, वो शहर से उस मेन मार्केट से उतना दूर होता जाता है। ये आपको अपने हर बिजनेस के अंदर ये एसोसिएट, जो मेन पॉइंट्स उन पे रेंट्स हमेशा ज्यादा होते हैं। तो यही उसने पुराने वक्त में उस इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जर्व किया, उसने कहा जी बिड रेंट कर्व बना दिया उसने। यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम पुराने दौर की बात करते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, वहीं पे सेल हो रही हैं, रीजन कि वो इतना रिटर्न ला के देती हैं। लेकिन जो आपके एग्रीकल्चर गुड्स हैं, वीट और कॉर्न है, वो एक यूनिट अपनी यूनिट के हिसाब से इतना रिटर्न नहीं ला के दे सकती जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए उनको। तो इसके लिए वो फिर शहर से बाहर लोकेट होते हैं, क्योंकि वहां पे कास्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो बिड रेंट जो है, क्योंकि दैट इज बेसिकली ऑन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ लैंड रेंट, कि कौन कितना लैंड का या कौन कितना जमीन का या बिल्डिंग का रेंट अफोर्ड कर सकता है, उसके हिसाब से वो लोकेट करता है। फिर उसकी प्राइसेस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें शामिल है, कि प्रोडक्ट की प्राइस जो मिलेगी उसमें से ट्रांसपोर्ट को माइनस करेगा और फिर वो उसका रेंट पे करेगा। दिस इज बेसिकली बिड रेंट कर्व। उससे नेक्स्ट वन आ जाता है वेबर्स इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। आई हैव डिस्कस्ड दैट बिफोर विद यू गाइस। वेट गेनिंग एंड वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस आ जाते हैं। ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेसेस भी यहाँ पे मेंशन है जहाँ पे ना वेट गेन करते हैं या वेट लूज करते हैं। अगर आप इस स्कीमेटिक डायग्राम को देखें तो लेफ्ट साइड पे टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस मेंशन्ड है। देयर इज वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, देयर इज वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड लास्ट वन इज नीदर इट लूजेस द वेट और नीदर इट गेन्स द वेट। सो उसको जरा साइड पे करते हैं। देन इन द सेंटर अगर आप टॉप पे देखेंगे आपके मेंशन्ड है मटेरियल वेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वेट बिफोर द प्रोडक्शन प्रोसेस की फर्स्ट कैटेगरी है, वेट आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस की सेकंड कैटेगरी है। देन यू मूव ऑन, यू लुक एट द पॉइंट वेयर लोकेशन टू ड्रॉ टूवर्ड्स, की यानी कि वो किस जगह पे लोकेट करता है, वो रॉ मटेरियल सोर्स के करीब लोकेट करता है या वो मार्केट के करीब लोकेट करता है। जो एरो की डायरेक्शन है वो बताती है वो किस जगह पे लोकेट करता है। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो रॉ मटेरियल इज हैवी बट the finished goods is cheaper, is lighter. If finished good is lighter, तो आप फिर you have a choice of transportation, right? For example, there are 2 points. Point A has raw material, point B has the market. You have to choose between these two कि आप या दरमियान में किसी जगह पे आप लोकेट करना चाहते हैं। आप किन ग्राउंड पे लोकेट करेंगे कि आपको ट्रांसपोर्ट करना क्या महंगा पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केट के पास लोकेट करते हैं तो आपको सारे का सारा रॉ मटेरियल बनाने के बाद रॉ मटेरियल आपको वहाँ ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा और वहाँ पे आप प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर देंगे। और अगर आप फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के पास लोकेट करते हैं तो यहीं से रॉ मटेरियल उठाया, उसको प्रोसेस किया, प्रोडक्ट बना दी और फिर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करके आपने मार्केट तक पहुंचा दिया और वहाँ पे सेल कर दिया। यानी कि इधर आपने रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है या आपने फिनिश प्रोडक्ट ट्रांसफर करनी है। और आपने ये देखना है कि किसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कम पड़ती है। नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस इन द मोस्ट सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स। नाउ लुक एट द इमेज। अगर हम वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पहला रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेट बिफोर द प्रोसेसिंग, वेट आफ्टर द प्रोसेसिंग। जो ब्लैक एरिया डिक्रीजेज इनटू अ स्मॉलर वाइट एरिया रिप्रेजेंट्स कि इट इज अ वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस की मैं एग्जांपल आप लोगों को क्या दे सकता हूँ कि ये आप फॉर एग्जांपल ग्रेवल बजरी की एग्जांपल देता हूँ। जब आप पहाड़ों में से चीज़ें निकालते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं और आप उनको सेल करते हैं। अगर आप लोग ये देखें तो बड़े बड़े पहाड़ काटे जा रहे होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ काटे जा रहे होते हैं और उनमें से बजरी निकाली जा रही होती है, उनको क्रश किया जा रहा होता है, क्रशर्स लगे होते हैं पहाड़ों के पास। अब वी हैव 2 चॉइसेस, या हम ट्रांसपोर्ट कर दें सीधे का सीधा वो या फॉर एग्जांपल ये ओर्स और मेटल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किए जा रहे होते हैं, माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट किए जा रहे होते हैं, या तो हम वो बड़े बड़े के पहाड़ के पीस काटें, उनको हम ट्रकों पर लोड करें, वी ट्रांसपोर्ट दैट एज अ रॉ मटेरियल टू अ प्रोडक्शन फैसिलिटी नियर इस्लामाबाद और यहाँ पे हम प्रोसेस करके उसको बेचना शुरू कर दें। एक हमारे पास ऑप्शन ये है। दूसरी हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम लोग वहीं पे प्रोडक्शन फैसिलिटी अपनी ले जाएं जहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहीं पे उसको प्रोसेस करें और सीधे सीधे ट्रक में बजरी लोड करके हम यहाँ इस्लामाबाद में पहुँचा दें जहाँ पे चाहिए मार्केट में। यू सी
तो हमारे पास दोनों चॉइसेस मौजूद हैं। हमारे पास एक वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है, हमें रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ता है, हमें फिनिश्ड गुड ट्रांसपोर्ट करना सस्ता पड़ता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास लोकेट करेंगे जो आपको एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इससे नीचे आते हैं, इससे नीचे देखें, देयर इज वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इज द वन वेयर जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा उसका वेट कम है या वो स्मॉलर स्कैटर्ड एरियाज में है और वो उसके बाद वेट गेन कर लेता है। जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ज्यादा वेट की होती है एज कंपेयर टू द रॉ मटेरियल। अब इस केस में हमने कहा पे अगेन द सेम फिलॉसफी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें अगर आप रॉ मटेरियल के पास लोकेट करते हैं जो हल्के वेट का, आपको फिनिश्ड गुड जो इंतहाई हैवी है उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है टूवर्ड द पॉइंट जहाँ पे वो चाहिए इन द मार्केट। तो बजाय इसके कि आप हल्की चीज़ ट्रांसपोर्ट करके अपने पास लें, वहीं पे आप उसको प्रोड्यूस करें और वहीं पे आप उसको सेल करना शुरू करते हैं। देयर माइट बी सर्टन एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी इश्यूज आल्सो कि कहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है, कहाँ पे नहीं लग सकती, लेकिन ब्रॉड एग्जांपल्स के सेंस में वेट गेनिंग और वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस के बेस के ऊपर इंडस्ट्री रियल लाइफ में कहाँ लोकेट करती है, यू कैन एक्चुअली सी दैट दीज डेज। सो अगर इसकी मैं एग्जांपल अगेन आपको थोड़ी देर पहले दी, द ब्रिक्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, वो मट्टी से बनती है बेसिकली। मट्टी को अगर ट्रांसपोर्ट करें तो मट्टी हल्की पड़ती है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ईंटों को ट्रांसपोर्ट करने लगे तो ईंटें बजाते हो द ब्रिक्स आर मोर हैवी, वो वेट गेन कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट के पास लोकेट करें, आप मट्टी एक्यूमुलेट करें मुख्तलिफ जगहों से। अगर आप लाना चाहते हैं आप उसको जाके वेट गेन करें और फिर आप उसको मार्केट में जाके सेल करते हैं। अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल एक टेलीविजन है, दैट माइट आल्सो बी अ वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे हल्के किस्म के पार्ट्स मुख्तलिफ लोकेशन से आते हैं, वही जगह पे असेंबल करते हैं और वहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। तो आप उन हर पार्ट्स के पास लोकेट नहीं करते, आप एक सेंट्रल लोकेशन में लोकेट करते हैं जहाँ कस्टमर से करीब है आप रादर, एंड इट वुड बी ईजियर टू ट्रांसपोर्ट टू देम। कस्टमर से करीब नॉट नेसेसरीली डज नॉट मीन कि आप मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में तो ये एग्जांपल वैलिड है, लेकिन आजकल फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इट इज़, अब ये मत एज्यूम करें कि हर जो सोनी और नेशनल और पैनासोनिक सारे के सारे मार्केट के अंदर बैठ के वहीं प्रोड्यूस करके दुकानों के पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके आगे सेल कर रहे हैं। वो दैट वुड बी वेरी डिसरप्टिव, दैट वुड बी वेरी कॉस्टली एंड दैट हैज़ सर्टन रेगुलेशंस आल्सो। मैंने आपको बताया था कि इट इज़, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं बेस्ड ऑन सर्टन कंस्ट्रेंट्स ऑन द रेगुलेशंस, लेकिन फिर स्टिल देयर वुड बी, अब अगर लोकेशन चूज करने की हम लोग दोबारा डिस्कस करना शुरू करते हैं तो ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान मैनी ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर इन पाकिस्तान हैज लोकेटेड टू बांग्लादेश। आई होप यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस डिस्कशन दैट वी हैव हैड। मैं इस क्वेश्चन को जब लोकेशन के हम लोग ये मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज डिस्कस कर लेंगे तो आई वुड कम बैक टू दैट क्वेश्चन ऑफ माइन कि बांग्लादेश ने, जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बांग्लादेश ही क्यों चूज किया, क्योंकि वो इट वाज नॉट लाइक, आप कह सकते हैं कि ताया वो ख्वाब में आए थे रात को सोते हुए कि बेटा जाके इंडस्ट्री अपनी बांग्लादेश में शिफ्ट कर दो, तो सुबह बेटे ने उठ के बांग्लादेश में शिफ्ट कर दी। इट वाज अ डिलिबरेट डिसीजन, कुछ सर्टन फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे वो डिसीजन लिया गया था। तो वो फैक्टर्स हमें इन लोकेशन डिसीजंस की चीज़ों के अंदर नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं हर एक के साथ साथ डिस्कस करूं तो दैट वुड आल्सो बी गुड। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जाके एग्जैक्ट, अब जहाँ से मार्केट की ओरिएंटेशन, आप ये समझ लें कि जहाँ से रूट स्टार्ट होता है, जो प्रोडक्ट आपने एक्सप्लोर करनी है, जहाँ से एक्सपोर्ट करनी है, उस रूट के हब के ऊपर बैठ जाना भी इज़ अ लोकेशन डिसीजन। यानी कि वो भी आप रॉ मटेरियल सोर्स आपका हल्का है, लेकिन आप वेट गेन कर रहे हैं जब आप उसका क्लॉथ बना रहे हैं। तो अब आप क्लॉथ के पास आप पहुंच गए तो आप ऐसी जगह से बनाएंगे जहां से डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके पहुंचा देना अपनी जगह पे। आप उससे पीछे दूर नहीं बनाएंगे, आप एक्सपोर्ट पॉइंट से दूर नहीं बनाएंगे, आप वहां पे नहीं बनाएंगे। बाकी इंडस्ट्री जहां बैठ के एक्सपोर्ट कर रही है आप उधर बैठ के बनाएंगे ताकि यहीं से एक्सपोर्ट हो जाए सीधा सीधा, बजाय इसके आप फॉर फ्लंग किसी इलाके में बनाए और वहां से पहले ट्रांसपोर्ट करके एक हैवियर क्लॉथ आप लेके आए और फिर वो आगे वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दैट इज अगेन समहाउ डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस वेट गेनिंग एंड वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस फिनोमेना। नाउ
Now this is Hoover's transport curve जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है. This is somehow directly associated to that concept of weight gaining and weight losing production process. अब ये कैसे associated है उसको let me try to explain that. आपके इसमें x axis नजर आ रहा है, उसके एक एंड के ऊपर source of raw material है, दूसरे एंड के ऊपर मार्केट है. source of raw material जहाँ से आपने raw material उठाना है, मार्केट वो है जहाँ पे आपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना है. यानी कि आपने अब द क्वेश्चन है कि आपने अपनी फैसिलिटी कहाँ पे लोकेट करनी है. आइदर आपने रॉ मटेरियल सोर्स के पास लोकेट करनी है या आपने जो है मार्केट के पास लोकेट करनी है. दूसरी तरफ वाई एक्सिस है, दो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या टोटल कॉस्ट को. एक्स और वाई से ना कंफ्यूज होइएगा. एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अगर रॉ मटेरियल सोर्स के पास लोकेट करते हैं तो आपकी कितनी कॉस्ट इनकर होती है. वाई रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप मार्केट के पास लोकेट करते हैं तो आपकी कितनी कॉस्ट इनकर होती है. अगर आपकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल आप वाई के पास लोकेट करते हैं, दैट वुड मीन कि आपकी कॉस्ट वहां पे कम है. दैट वुड मीन इट इज अ वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना आपको सस्ता पड़ता है. यानी कि जो आपका इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने रॉ मटेरियल उठा के मार्केट के पास पहुंचा दी और उसकी कॉस्ट कम है. इट इज अ लोअर कर्व एज कंपेयर टू आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कर्व. अब अगर आपका इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कर्व के केस में आपने मार्केट के पास लोकेट किया और आप रॉ मटेरियल जो आपका हल्का है, फॉर एग्जांपल आप टेलीविजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट से टेलीविजन बनता है, तो इसका मतलब ये है, वी आर एज्यूमिंग दैट राइट नाउ, तो उसका मतलब ये है कि आप मार्केट के पास लोकेट करें, नियर टू द मार्केट एज कम्पेयर टू नियर टू द रॉ मटेरियल सोर्स, क्योंकि आपको स्मॉलर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना हल्का पड़ता है और आप कि उसकी हैंडलिंग कॉस्ट तो यहाँ पे जनरली दोनों की बताएगी ये बराबर है. चाहे आप रॉ मटेरियल हैंडल कर रहे हैं, चाहे आप फिनिश प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हैं, हैंडलिंग कॉस्ट आपकी सेम है. अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मार्केट के पास लोकेट किया, आप एक जो इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कर्व है, जो एक लोअर कर्व है, वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि यू आर ट्रांसपोर्टिंग द रॉ मटेरियल एंड आप फिनिश गुड मार्केट के पास प्रोड्यूस करके उसको सेल कर रहे हैं. दूसरी तरफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इफ दूसरा कर्व आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कर्व में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यू आर लोकेटिंग, अगर हम वाई एक्सिस की तरफ जो पॉइंट है वहां पे हम लोकेट करते हैं, दैट वुड मीन कि आप रॉ मटेरियल सोर्स के पास लोकेट कर रहे हैं. रॉ मटेरियल सोर्स के पास बैठ के, क्योंकि इट इज अ वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वहां पे आप टेलीविजन बना के जब मार्केट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा इनकर होती है, क्योंकि टेलीविजन हैज गेन्ड वेट राइट नाउ. तो इसका मतलब यह है कि आपको मार्केट के पास लोकेट, आपको रॉ मटेरियल सोर्स के पास लोकेट करके मार्केट के पास ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ता है. जब आपको ये एक्सपेंसिव पड़ता है तो इसका मतलब ये है जो इन दोनों में से लोएस्ट पॉइंट, अगर अगेन गोइंग बैक टू द टोटल कॉस्ट कर्व आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट वाई के ऊपर लोकेट करना, यानी कि मार्केट के पास लोकेट करना आपको चीपर पड़ता है, विच इज अ लोअर कॉस्ट. हमेशा आप ये कॉस्ट के ट्रेड ऑफ बेसिकली देख रहे हैं हम इस ग्राफ में, डिफरेंट कॉस्ट के ट्रेड ऑफ देख के हम एनालाइज कर रहे हैं कि कॉस्ट हमें कहाँ पे कम पड़ती है, और हमें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के बेस पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को जब हम कंसिडर करते हैं हमें ये नजर आता है कि पॉइंट वाई इज द लोएस्ट कॉस्ट कर्व, लोएस्ट कॉस्ट पॉइंट जहां पे हमने लोकेट करना है. नाउ बेस्ड ऑन दिस आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि लेट्स एज्यूम कि अभी हमने बात की थी दिस इज अ वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर ये वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस होता तो कर्व्स के अंदर क्या चेंजेस आते. नाउ इफ आई हैड बीन एट, आप कह सकते हैं इन योर क्लास राइट नाउ एंड यू वुड बी सिटिंग इन फ्रंट, आई वुड डेफिनेटली हैव टेकन योर क्विज. बल्कि एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर मैं क्विज पहले ले चुका हूँ, इसी चीज के ऊपर, द सेम क्वेश्चन, कि अगर आप अभी हमने बात की वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस की, टेलीविजन आप बना रहे हैं, अगर हम वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं यानी कि वी आर प्रोड्यूसिंग, आप कह लें ग्रेवल यानी कि बजरी वगैरह हम बना रहे हैं, तो हम किस डायरेक्शन में इसको लेके जाएंगे, हम कैसे इसको कर्व को कैसे चेंज करेंगे. आपका बेसिकली ये होना है कि आपका कर्व इस डायरेक्शन में, क्योंकि बिकॉज नाउ आपको रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ता है. इसका मतलब है जो आपका इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कर्व है दैट वुड गो अप, और जो आपका आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कर्व है दैट वुड स्लाइटली गो डाउन. यानी कि आपका राइट साइड से जो y है पूरा टोटल कॉस्ट का वो ऊपर चला जाएगा और x थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपकी इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब आपका रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है. अगर आपको रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है दैट वुड मीन कि वो हैवियर है, देयर माइट बी, इट इज़ अ वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस. तो अब वो वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना हैवी पड़ता है टुवर्ड्स द मार्केट. तो अगर हम मार्केट के पास फैसिलिटी लगाएंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा ऑटोमेटिकली कर्व ऊपर चला जाएगा. और अगर आप
फॉर एग्जांपल मार्केट से दूर रॉ मटेरियल सोर्स के पास लगाते हैं, तो रॉ मटेरियल बनाने के बाद उसको अगर मार्केट में ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको वो कम पड़ेगा, वो उसको क्रश कर लेंगे आप। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो पॉइंट एक्स के नीचे कर्व है आपका आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कर्व है, इट वुड डिक्रीज। तो ऑटोमेटिकली आपका जो है टोटल कॉस्ट कर्व इस डायरेक्शन में टिल्ट कर जाएगा, यानी कि वाई ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा, एंड इट वुड बी ऑप्टिमल टू लोकेट एट द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। Okay, we have discussed various aspects today. We are out of time right now. We need to finish this and we need to go through them a little bit before we finish it off. This is what we discussed: basing point, freight equalization, single zone pricing and quantity discounts. सिंगल यूनिफॉर्म प्राइसिंग वो कॉन्सेप्ट है जब आप एक ही सिंगल प्राइस सारे कस्टमर्स को चार्ज कर रहे होते हैं। फ्राइट इक्वलाइजेशन वो वाला कॉन्सेप्ट है जब आप ये देखते हैं कि फ्राइट चार्जेस जो आपने चार्ज करने हैं वो आप इक्वल चार्ज करते हैं दूसरे कंपेटिटर्स के, सो दैट योर प्राइसेस इन द मार्केट आर ऑलमोस्ट द सेम। फिर बेसिक पॉइंट प्राइसिंग वो है कि जहाँ पे आप एक कस्टमर जो आपके कंपेटिटर का वेयर हाउस है वो आप उसी के बेस के ऊपर आप वहीं से आप फ्राइट कैलकुलेट करते हैं, सो दैट कि जो कंपेटिटर की प्राइस आप मार्केट में चार्ज कर सकें, सो दैट यू कैन कम्पीट। देन देयर इज इंसेंटिव प्राइसिंग, देयर आर क्वांटिटी डिस्काउंट, जिसका ये ग्राफ आपके सामने है कि बेस्ड ऑन योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप जैसे फॉर एग्जांपल 100, 200, 300, 400 केसेस की बात है कि 100 केसेस से नीचे आप हायर प्राइस चार्ज करेंगे, लेकिन 100 केसेस से लेकर 200 तक क्योंकि आपका फुल ट्रक लोड हो जाता है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन, तो वो चार्ज करेंगे उसके हिसाब से। देन 200 एंड अबव आपको क्योंकि रेल रोड पड़ती है, यू कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू दैट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और नीचे चली जाती है तो यू वुड चार्ज बेस्ड ऑन दैट। तो आप बेसिकली ये प्राइस डिस्काउंट्स दे रहे हैं कस्टमर्स को बेस्ड ऑन क्वांटिटी, एंड डेफिनेटली दोज प्राइस डिस्काउंट्स आर बेस्ड ऑन some fundamental aspect of yours, which in this case is the transportation cost. Now then we started discussing the facility location, which is an important aspect. Facility location is associated to where you would locate your plants and your production facilities or your warehouses or your terminals or your stocking points or your retail outlets. In facility locations we basically started we distributed them into the aspect जहाँ पे हमने कहा कि जी एक economic cost का aspect है इसमें facility location में कि आपका transportation, inventory, carrying cost, labor and दूसरी cost को आप trade offs देख रहे होते हैं कि कहाँ पे cost ज़्यादा पड़ती है कहाँ पे कम पड़ती है। फिर दूसरा retail revenue का aspect है कि cost को पीछे छोड़ के आप product का outflow revenue का aspect देख रहे होते हैं, एक ये वाला एंगल है। थर्ड वन इज द सर्विस एस्पेक्ट कि कस्टमर सर्विसेज का एस्पेक्ट आप देख रहे होते हैं कि कैसे दी जा सकती है। हमने आई एक्सप्रेस टू यू दैट देयर आर नंबर ऑफ थ्योरी इकोनॉमिक और मैथमेटिकल अप्रोचेज जिससे आप फैसिलिटी या वेयर हाउस की लोकेशन आप डिसाइड कर सकते हैं, बट देन वी वुड डिस्कस सम ऑफ देम एंड सम ऑफ देम वी वुड लेट गो बिकॉज यू वुड हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू देम इन द ऑपरेशंस मैनेजमेंट योर ऑपरेशंस कोर्स। The first one I discussed was bid rent curve. This was a very simplistic based on a simplistic assumption कि मार्केट के पास वही लोकेट करेगा जो उसका रेंट अफोर्ड कर सकता है, दूसरी जो बिजनेसेस हैं वो मार्केट से दूर जाते जाएंगे, जो इस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से रिप्रेजेंट है। प्राइस माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वुड बी इक्वल टू द प्रॉफिट्स व्हिच शुड बी इक्वल टू द रेंट जो आपने पे करना है, क्योंकि मार्केट्स के पास रेंट ज्यादा होंगे, मार्केट से आप जितना दूर जाएंगे उतने रेंट कम होते जाएंगे, तो वही बिजनेसेस वहां पे लोकेट करेंगे जो उन रेंट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली बिड रेंट कर्व। फिर हमने ये वेट गेनिंग और वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस को डिस्कस किया, वेरी सिंपलिस्टिक थिंग। जहां पे वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस होगा वहां पे इसका मतलब यह है कि आप रॉ मटेरियल सोर्स के पास लोकेट करेंगे ताकि आप फिनिश प्रोडक्ट हल्की और ट्रांसपोर्ट करने में आसान पड़े। जहां पे आपका वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसे आप मार्केट के पास लोकेट करेंगे क्योंकि आपकी फाइनल प्रोडक्ट हैवी होगी और उसको ट्रांसपोर्ट करना आपको आसान पड़े। देन हमने ये होवर्स ट्रांसपोर्ट का डिस्कस किया कि फैसिलिटी लोकेशन के लिए कि आपने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पे लोकेट करनी है। अगेन दिस इज सिमिलरली बेस्ड ऑन वेट गेनिंग एंड वेट प्रोडक्शन वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी हमारे सामने कर बना हुआ है दैट इज बेसिकली वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। आप इसमें मार्केट के पास लोकेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन टोटल कॉस्ट वहां पे कम पड़ती है मार्केट के पास लोकेट करने में। और अगर इस कर्व को हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में टिल्ट कर दें दैट वुड बी अ वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डेफिनेटली आई वुड गिव दैट टू यू एज एन असाइनमेंट। Okay, we are out of time right now. I'll have to finish it over here. Thank you. Take care. Allah Hafiz.